बोधव्यम च विकर्मणा. What is forbidden action? It is also to be known. And akarmanascha bodhavyam. Akarmanah cha bodhavyam. What is inaction is also to be known. Gahna karmano gati. The action of karma is profound, that it cannot be understood by simple mental condition. Literal meaning of this: for there is something to be known even about action, and something is to be known about forbidden action, and something has to be known about inaction. हमें कर्म के बारे में जानना है, विकर्म के बारे में जानना है और अकर्म के बारे में जानना है. भगवान इन तीनों बातों को, इन तीनों प्रकार के कर्म को, कर्म के तीन विभाग हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म. सो इस चीज को भगवान यहां विस्तार से बताते हैं. द ट्रू नेचर ऑफ एक्शन इज इनस्क्रूटेबल. सो work is divided by Lord Krishna into three categories. That is recommended action, that is karma. Other is forbidden action, vikarma, and the third one, it is inaction, that is akarma. So what are these types of karma? That is, what is action? Karma kya hai? Karma is auspicious action recommended by scriptures for regulating the sense and purifying the mind. That means whatever we do and see it as a witness, not as a doer. जो भी हम कर रहे हैं उसको साक्षी भाव से देखें, उसको कर्ता के तौर पर न देखें, तो ये हमारे मन, वाणी और विचारों को शुद्ध करता जाएगा और भगवान के और करीब लाता चला जाएगा. सो एक्शन इज auspicious action recommended by scriptures for regulating the sense and purifying the mind. Forbidden action, that is vikarm. It is inauspicious action prohibited by scriptures, since these are detrimental and that result in degradation of soul. Vikarma, what is not to be done is vikarma. If something, what is not to be done is vikarma. Forbidden actions, like Arjuna is not fighting war, so it may be harmful to society, and such things are not supposed to be done by a great warrior, so here it becomes vikarma. So anything which is harmful to society, which leaves wrong message to society, it becomes vikarma. Inaction. And the third one is akarma. Akarma is action that is performed without attachment to result, merely for pleasure of God. They neither have any karmic reactions, nor do they entangle with the soul. So यहाँ पर हम तीन चीजों को समझेंगे. सबसे श्रेष्ठ कर्म अकर्म होता है. जब संत लोग या तत्वदर्शी किसी कार्य को करते हैं तो उसमें वे भगवान को ही करता देखते हैं और अपने द्वारा होता हुआ देखते हैं, अपने को माध्यम देखते हैं. दे know that we are merely instrument, and everything, the energy, the manifestation, it is all done by God. So such is, ये अकर्म होता है. अकर्म श्रेष्ठ कर्म है जो किसी भी प्रकार के संस्कार को छोड़ता नहीं है. सिद्ध पुरुष जब धरती पर आते हैं देन वो इसी प्रकार से कर्म को करते हैं, अकर्म को करते हैं. दूसरा है कर्म, दैट इज रिकमेंडेड कर्म, जिसके बारे में सलाह दी गई है जो इस मार्ग पर हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर हैं. द पर्सन हु आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो दे ट्राई टू सी दैट वॉट एवर work is there, it is done by God, and if I am thinking about it, making some mind, making desire, then why I am making desires, it is worthless to make when I am not the doer. Then
why to claim for its fruit? So if we inculcate such idea that यदि कर्म भगवान के द्वारा हो रहा है तो हम विचार क्यों बना रहे हैं, संकल्प क्यों बना रहे हैं, इसके फल की आकांक्षा क्यों कर रहे हैं? जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, सो ऐसे जो कर्म हैं वो हमें भगवान की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। या इसे ये भी कह सकते हैं, कर्म की श्रेणी में वे कर्म भी आते हैं जो हम बस करते चले जाते हैं भगवान की कृपा से, भले ही उससे संस्कार बने, अगर संस्कार बनेंगे भी तो ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम करेंगे, उसका फल भोगेंगे और धीरे धीरे ये जानने लगेंगे कि ये जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज, दिस नेचर इज एफिमरल एंड अल्टीमेटली वी शुड लीव इट एंड our work should offer at the feet of God. So it is slow learning process. However, karma is also recommended. Means if we cannot do akarma, then at least karma we should do. यदि हम अकर्म नहीं कर पा रहे हैं, साक्षी भाव नहीं रख पा रहे हैं, तो ठीक है, हम फल की दृष्टि से ही कार्य करें, उसको कर्म कहेंगे। तो ऐसे कर्म भी हमको, अगर हम कर्म करते रहेंगे, ये कर्म योग है। अध्याय 2 के अंत में और तीसरे अध्याय में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। The same thing what is karma yoga has been discussed in last some verses of chapter 2 and chapter 3 completely, that we should continue doing work, and by doing work by its fruits and whatever the results are coming, and ultimately we will be free from bondages, because God itself is doer. So God motivates us all to do work. So the best one is akarma, the second, the lower grade is karma, and the third grade is also there, that is vikarma, that is forbidden work. Like Arjuna was not willing to fight war, अर्जुन ने युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था, वो लड़ना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से समाज से बुराइयों का नाश नहीं होगा। जो हमारे स्वधर्म हैं, अगर हम उनको छोड़ देते तो मन में तो वही संस्कार बनते चले जाएंगे। हमने अपनी इंद्रियों से तो उन कर्मों को छोड़ दिया है, लेकिन मन, विचार, बुद्धि अभी इतने आगे हमारे व्यापक नहीं हुए हैं, इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि वे उन्हें छोड़ पाए, और उन विचारों में वे गुथे हुए हैं। सो इफ वी हैव लेफ्ट द कर्मा or actions physically, but our mind and thoughts are entangled with those ideas, then it is coming under category of vikarma. So leaving only the work merely by hands and physically is of no purpose if it leaves traces in our mind and making the trace, that is sanskar. So that is called vikarma. Also it gives wrong message to society. तो हमें, अगर हम ऊंची स्थिति के हैं तो हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म का मतलब है हम अकर्म उस समय करेंगे ही, ऐसे कर्म जिसमें साक्षी भाव से हम देखते हैं कि ये कर्म होते हुए हो रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो खाने का पाचन हो रहा है, सांस आ रही है, जा रही है, रुधिर का परिसंचरण हो रहा है, दैट इज द transportation of blood, whatever is the digestion of food, everything, whatever is occurring, every biochemical reactions which is occurring in our body, it is also done by somebody. If we see, yes, God is doing inside there a lot of activities, cell by cell, the things are going on, it is done by Lord. So that person is doing a karma, and that person also sees that whatever work is performed by us, it is only directed by God, executed by God, and we are merely instruments. So such is the category of inaction. ये अकर्म की कैटेगरी है, और इससे ऊपर है कर्म की कैटेगरी में, जहां पर हमारे अंदर फल की भी इच्छा हो सकती है, लेकिन हम कर्म करते रहते हैं और भगवान की प्रेरणा से करते रहते हैं, उन्हें समर्पित भी करते हैं, थोड़ी आकांक्षा भी होती है, लेकिन फिर भी हम भगवान की ओर बढ़ते चले जाते हैं और हम कर्म से फिर अकर्म में उतर जाते हैं। तीसरी कैटेगरी विकर्म की है, जो सबसे लोअर है। हम इस भय से कर्म नहीं करते कि कर्म करेंगे तो संस्कार बनेगा, लेकिन मन ही मन में उनकी
उठापटक चलती रहती है कि हमने कर्म छोड़ दिया, अब संस्कार नहीं बनेगा, या उसके प्रति वी आर हैविंग ल्योर एंड लस्ट फॉर दोज थिंग्स, दो वी हैव लेफ्ट द स्वीट, but if our mind is thinking about those sweets, then what is use of leaving those sweets? In the similar manner, if we have left certain kinds of action under fearing that it will leave traces, but we have not we are not free from that attachment, then there is no use and it leaves wrong message, and ultimately we will be uh, thrown out from that society, because this is the survival of the fittest, this is the principle. So we should do work for our evolution. We cannot afford to leave the work, because work is the path of evolution. So we should do work either by being a witness or by indulging into work. या तो हम साक्षी भाव से कर्म करें, या हम कर्म करने में स्वयं को कर्ता माने। दोनों ही चीजें बताई गई हैं। साक्षी भाव से करते हैं तो अकर्म अकर्ता है, और नहीं तो हम करता है, लेकिन हम विकर्ता ना बने कि हम कर्म तो छोड़ बैठे हैं लेकिन उसके तंतु हमारे मन में बनते चले जा रहे हैं। then it is of no use and it will drive us into stagnation. ऐसे हम सड़ांध की स्थिति में पहुंच जाएंगे और हमारा विकास भी रुक जाएगा। नेक्स्ट वर्स इज 4.18 कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्म कृत कर्मणि अकर्म यह पश्येत। That means karmani, the person who is seeing action in inaction, karmani akarma ya pashet, that is in action जो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, that means जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म देखता है, द पर्सन हु इज सीइंग इन एक्शन पश्येत कर्मणि, पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, एंड सीज इन एक्शन, जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, दैट पर्सन इज वाइज amongst human, sahayukta, and also that person is yogi. Yukta means yogi, and kritsna karma krit, also kritsna means all kind of karma krit actions while performing all kinds of action. ऐसा व्यक्ति जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, और सभी कर्मों को करता हुआ भी वह उससे मुक्त रहता है। The literal meaning is he who finds inaction and action in inaction, he is the wise one among men, and he is engaged in yoga and performer of all kind of actions. So that means actions in inactions. What is inaction? जैसे ही हमने प्रीवियस वर्ष में देखा कि अकर्म क्या है, अकर्म जिसके संस्कार न बने वो अकर्म है। हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे तो हमारे अंदर संस्कार नहीं बनाती। ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन occurring in our body, we do not claim that we are now transporting this blood, we are now taking this reed, and we are digesting food. So as we are not claiming, so these comes under the category of akarma. हम उनके बारे में ये दावा नहीं करते कि हम देखो खून को दौड़ा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, तो वे हमारे अंदर संस्कार भी नहीं बनाती और उसे अकर्म की श्रेणी में रखा गया है। किंतु जो योगी है, जो भक्त है, that sees that these all works which are
getting performed within our body is performed by God itself. So that person knows that these are not merely the biological reactions, it is done by God. So something who is inside, it is soul, that is the spark of that Lord, is motivating, the energy of Lord is ultimately proliferating in our body and all the actions are getting performed. So इस प्रकार से वो अकर्म में भी कर्म होता हुआ देखता है. And also this physical world, it is not simply static. There are in each part and parcel the activities going on and things are getting transformed from one level to next higher level. And in this way, every small spark or particle, it is moving ahead to the path of evolution. In this way, yogi sees that there is nothing which is left behind and God is taking every particle ahead. So, जो अकर्म में कर्म देखता है, in this way the yogi sees that there is, this world is full of actions and this all work is manifested and executed, it is all by God. And in action the next है जो कर्म में अकर्म देखता है. दिस इज द अदर कैटेगरी. तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो दोनों ही देखता है. पहली बात बताई गई है जो हमारे शरीर में अकर्म हो रहे हैं इनमें वो कर्म होता हुआ देखता है. जो सृष्टि में अकर्म हो रहे हैं उनमें वो कर्म होता हुआ देखता है. तो अकर्म में कर्म देख रहा है, अब कर्म में भी अकर्म देख रहा है. कर्म में कैसे अकर्म देख रहा है? सो इन एक्शन there is another category that is done by karma yogi. That means whatever the social duties are performed by karma yogi, जो कर्म योगी संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, रोज की क्रिया करता है, अपने प्रति दायित्वों का, अपने को शुद्ध रखता है, ये स्वयं के प्रति दायित्व है. परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी दायित्वों का निर्वाह करता है. अगर गृहस्थ में है तो परिवार के प्रति, और अगर गृह त्यागी है तो समाज के फिर भी कल्याण के लिए घूम रहा है. फिर भी इस कर्म में वो that person surrenders it to God and also witness that it is all performed by God and who am I to perform it. जब हम आखिरी सांस के बाद एक अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते तो कर्मों को करने का हम क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया है. वो ये देखता है कि हम करने वाले नहीं हैं, हम तो निमित्त हैं. जब हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि एक अतिरिक्त सांस ले सकें तो इतने बड़े बड़े कर्म समाज के प्रति, लोकोपकारी कर्तव्य करना, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति, तो वो देखता है ये कर्म मैं तो कर रहा हूं लेकिन मैं निमित्त हूं और इसको भगवान ही करा रहे हैं. द पर्सन हु इज योगी sees that I am only instrument and all the actions which we are doing, practically the people may say you are very good, you have done so and so work, so that yogi understands that no, I have not, though that person may not express it to all because the other will not understand it, but that person knows that this all work is done by God, so that yogi offers it at feet of God and makes no trace of such actions. So they execute their social duties without attachment to result, dedicating the fruits to God. Although engaged, that yogi is not fearing or scared of actions and not escapes from action, कि वो जंगलों में चला जाए ये डर के कि कर्म करेंगे तो संस्कार बनेंगे, वो ऐसा नहीं करता. इसीलिए वो कर्म योगी है. वो कर्म करता है, प्रभु के लिए करता है और प्रभु के और समीप होता चला जाता है, क्योंकि प्रभु स्वयं ही कर्म स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है. सारी सृष्टि में बिना किसी
प्राप्ति के या इच्छा के वो कर्म किए जा रहे हैं। सो उसी से वो मोटिवेट होता हुआ, प्रेरित होता हुआ योगी कर्म में लगा रहता है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है कर्म, उसी को तेरी भेंट तेरी देन तेरी भेंट चढ़ाऊं, मैं तेरा तेरा गाऊं। So although engaged in all kind of activities, they are not entangled in karmic reactions. तो वो इस कर्म चक्र में नहीं पड़ता। There were many great kings of Indian history like Dhruva, Prahlad. These were kings, Yudhishthir and Prithu and Ambarish. So who discharged their kingly duties to best of their abilities, yet because their minds are not entangled in material desires, so these were not bound to any actions. They have not acquired any traces of karma. युधिष्ठिर हो, पृथु हो, ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने राजाओं की अपनी जितने भी कर्म है उसको निष्पादित किया है, लेकिन उसके कोई भी संस्कार नहीं बनाए। सो दीज आर, उन्होंने क्या किया है, कर्म में अकर्म को देखा है, कर्म को होता हुआ देखा। किए तो खुद कर्म है, लेकिन उन्होंने जाना है कि ये सब भगवान कर रहे हैं। अकर्म में कर्म को देखना, शरीर में होने वाले कर्म को, प्रकृति में होने वाले, जो पत्तियों में होने वाले, पौधों में होने वाली बढ़त, उसमें देखा कि कर्म है, भगवान ने किया। और कर्म में अकर्म को देखना, हमने भी जो किया उसको देखा, अगर हम उसमें संस्कार न बनाए तो वही अकर्म है। अकर्म का मतलब ऐसे कर्म जिसमें संस्कार का निर्माण होता, which leaves no traces is known as inactions. Though these are the full of energies, full of transformation, then also these are inaction and superior to us. So these are termed as akarma. Another name of akarma is कर्म योग। अकर्म का ही दूसरा नाम कर्म योग है। जब हम कर्म करें और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, यही कर्म योग है, और ये अकर्म की ही श्रेणी है, which have been discussed in detail in previous 2 chapters, कि हमको कर्म कैसे करना चाहिए, प्रभु के समर्पित होकर करना चाहिए, कर्म योग क्या है, that we have seen in chapter 3 in full details. So verse is 4.19, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, whose all undertakings are काम संकल्प वर्जिता, free from काम संकल्प, desire for material pleasure, that is काम. So whose all undertakings are free from desire of material pleasures, and varjita, devoid of all these things. So यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी कार्य के समारंभ, शुरू से ही कार्य का आरंभ भी उसका किसी कामना के लिए नहीं होता, किसी फल की इच्छा प्राप्ति के लिए वो कार्य नहीं करता। काम के शुरू से ही, शुरुआत से ही जो फल से विरत रहता है, फल से उसका कोई लेना देना नहीं रहता, जिसके कार्य के सभी प्रारंभ काम संकल्प से वर्जित हैं, मुक्त हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, so such works is completely burnt into the divine knowledge, tam ahu panditam buddha. So the wise person says them, call them as pandit, so that is a sage. So wise person says them a sage. What is the literal meaning of this? Wise call him learned, whose actions are all devoid of desires and thoughts. That means sankalp means thought. That person is not having any thought or perusal for that I should do this, should do this. Whether the work is performed and whether the work is not performed, he is not losing anything or gaining anything, because work is done for the God. So that means it has no goal, it has no reach. So the work is never incomplete, it always evolves that person a lot.
So the wise call him learned, whose actions are all devoid of desires and their thoughts, and whose actions have been burnt away by the fire of wisdom. So ये बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहा गया है जिसके कार्य के समारंभ, कार्य की शुरुआत ही संकल्प से मुक्त है, तो वो प्रभु के लिए कार्य करता है, प्रभु के और पास जाने के लिए कार्य करता है। सांसारिक क्षण भंगुर और नश्वर संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों के आनंद को प्राप्त करने के लिए वो कार्य नहीं करता। उसके सभी कार्य के समारंभ की शुरुआत ही संकल्प से और फल से वर्जित होते हैं, मुक्त होते हैं। उसको पंडित जन, उसको योगी जन, बुधा पंडित कहा करते हैं। The soul being a tiny part of God, who is the ocean of bliss. So God is the ocean of bliss, and we, the soul, are a spark of that supreme Lord. So we are blissful. We should not beg here and there for the bliss. We are having a tendency to do work for others and others so that they can praise us. But what kind of this praise will do when we self are blissful? हम स्वयं ही वरदानित हैं, हम उस भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति हमारा दायाद है, भगवान हमारे ऊपर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। तो संसार में हम संसारियों के लिए इस आशा से कर्म क्यों करें कि वे हमारी प्रशंसा करेंगे? हम उस भगवान के लिए कर्म करेंगे। उस भगवान की ये सृष्टि है और उसके संचालन में जब हम कर्म करेंगे उसी की शक्ति से करेंगे, हम सहयोग देंगे, तो इस तरीके से हम उसके करीब होते जाएंगे, एक अच्छे स्वामी के हम अच्छे नौकर बनते चले जाएंगे। The soul being a tiny part of God, who is the ocean of bliss, naturally seeks bliss for itself. We naturally seeks, हम प्राकृतिक रूप से उस वरदान को, उस कृपा को पा रहे हैं। However, covered by the material energy, the soul mistakenly identifies the material body. So अज्ञान के अंधकार से ढके होने की वजह से हम खुद को ये समझ नहीं पाते कि प्रभु के आनंद की वर्षा हो रही है। In this ignorance, it perform action to attain bliss from the world of matter. Since these actions are motivated by the desire for sensual and mental enjoyment, so we may do work for our sensual and mental enjoyment. They bind the soul in karmic reaction. If we are doing our karma in exchange of something, यदि हम कर्म को अपने मानसिक आनंद के लिए या दूसरी किसी लक्ष्य के लिए करते हैं, तो हम इन कर्म के बंधनों में बंधते हैं। लेकिन जो योगी होता है उसके सभी कर्म के समारंभ काम संकल्प से वर्जित हुआ करते हैं। वो इस प्रकार से उसे कुछ लेना देना नहीं रहता। संतुष्ट सततम योगी, दैट पर्सन इज ब्लिसफुल एंड कंप्लीटली satiated, and that person does not want anything from this physical world. Is only the goal, only the आराध्य is the spiritual God. तो वो भगवान में ही रत रहता है, उसको संसार से लेना देना नहीं रहता। यदि चूंकि समष्टि कर्म स्वरूपा है तो व्यष्टि भी कर्म स्वरूपा है, इसलिए वो कर्म करता रहता है और भगवान के भजन में भगवान को मन में ध्यान में रखते हुए वो कर्म करता रहता है। Now, Uma Shukla ji will recite bhajan for us. राम राम, धन्यवाद शिव कुमार, बहुत सुंदर। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया।
देखो कैसी है राम जी की माया, देखो कैसी है राम जी की माया। फूलों में भी राम है, पत्तों में भी राम है, फूलों में भी राम है, पत्तों में भी राम है, वो सारे पेड़ों में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया, वो सारे पेड़ों में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। गंगा में भी राम है, यमुना में भी राम है, गंगा में भी राम है, यमुना में भी राम है, वो सारे पेड़ों में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। वो सारी नदियों में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, ओ सारे जीवों में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। देखो कैसी है राम जी की माया। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। साधक में भी राम है, सतगुरु में भी राम है, साधक में भी राम है, सतगुरु में भी राम है, वो सारे सत्संग में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। सारे सत्संग में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में राम समाया। देखो कैसी है राम जी की माया। देखो कैसी है राम जी की माया। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम।
राम 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 शिव कुमार राम 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 राम। राम राम सभी को राम राम चरण स्पर्श राम 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 राम। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर तरीके से कर्म अकर्म विकर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत प्यार सहित आशीर्वाद। और कितनी बड़ी बात है कि हम वास्तव में यदि इस बात को सोचें कि अंदर जो हमारे काम हो रहे हैं, तो क्या हम इसको कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं या खून का दौरा हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें जो भी और भी कार्य कर रहे हैं उसको भी अकर्म मानते जाएं। बहुत अच्छा उदाहरण द्वारा समझाया। बाकी गीता तो जितनी बार समझो उसमें एक नई चीज अलग से लगती है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत प्यार। और उमा बहन तो वही समय अनुसार भजन गाती हैं, बहुत बढ़िया। राम 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 सबको राम राम। प्रिया बहन राम राम, बहुत दिनों बाद आज आपके दर्शन हुए हैं भाई। Thanks, Aunty. Ram Ram, everyone. Thank you, Bhaiya, for the very beautiful discourse. Thank you, Uma Aunty, for beautiful, beautiful bhajan. Thank you, everyone. राम Ram Ram.